Welcome to an enlightening episode of Sunny Side Up. I say enlightening since my guest today is an enlightened spiritual seeker. ये स्पिरिचुअल सीकर कौन लोग होते हैं? ये वो व्यक्ति हैं जो आध्यात्मिक विकास और ज्ञान की तलाश में रहते हैं, जो अपनी आंतरिक चेतना और अपने स्व के सत्य को ढूंढने में लगे रहते हैं. One of the greatest examples of our times is Swami Vivekananda. They are driven by the desire to find purpose and meaning beyond the materialistic and superficial aspects of life. In this journey, Adhyatmik Yatra, these individuals engage in various practices like yoga, prayer, but for my guest, it is meditation, dhyan, sadhana. We all know the wide ranging benefits of meditation. Mentally, it enhances mindfulness, reduces stress, gives inner peace and clarity. Physically, it improves focus, gets you better sleep, and even strengthens your immunity system. And spiritually, it helps individuals to connect with themselves more deeply and understand their purpose in this world. This subject is so vast and so deep, itna gehra hai, that I went beyond my 20-25 minutes format. But I couldn't help myself to cut it short. My guest is so very young. Her natural glow, her aura, her fascinating insights were so engrossing that time just flew by. चलिए मिलते हैं और सुनते हैं डॉक्टर सोनाली मिश्रा को, who has touched more than 10,000 lives through her teachings over the past 3-4 years. So, hi everyone, Pranam and Abhinandan from my side, and I am Dr. Sonali Mishra. It is very beautiful day when we are recording this. It's Akshaya Tritiya today, and I wish a very happy Akshaya Tritiya to you, all of you. So, I am a scientist who converted into a complete spiritual seeker. My journey where I wanted to become a scientist, I was in fourth class, and I remember all my friends would tell some of them wanted to become a doctor, some wanted to become engineer, painter, and all sorts of things. But I was the only one in the class who stood up and said, I want to become a scientist. That much I loved science when I was in fourth class. And along with that, since I was born in Hardwar, and my father was very deep into spirituality, and I would say he was at the peak of his spiritual nature and practices when I was born. And he used to live in Pori Garhwal, and we were living in Haridwar. Then we shifted to Rishikesh and lived a few years there. And then we shifted to Kashi. So, kind of, I've always been around Ma Ganga somehow in my life. And so, I was always kind of influenced by his spiritual nature. My mother was a complete bhakti yogi, and my father was a complete non dualist person who would just look at Shakti and Shiva in a different concept in a complete spiritual manner. So when I was just 5 year old, that was the time my father was doing some siddhi he was trying to do in his spiritual practice, and he was stuck somewhere. So I used to play with many dolls and pieces. So that time he came to me and he was sitting with me, and I just chose 5 dolls from it and I gave it to him that this is what you want. And then he got some idea and he started the prarthana and siddhi in a different manner, and he actually could succeed in his prayers. So since then he started to actually believe that I also have got some connection with his spiritual journey. He still has those 5 dolls which I gave to him at that time, and I used to draw very different kind of pictures. When I was just 4 year old, I started speaking very clear, and when I was taken to my village, I started to describe everyone, this is not my village looks like this. And that was the first time I ever visited any village, but I was able to describe all the things in so much depth, and people were surprised. So uh,
आई वॉज नॉट अ वेरी ईजी चाइल्ड, क्योंकि मैं बहुत अजीब चीज़ें करती थी. तो माई पेरेंट्स यूज टू टेक मी टू सम पंडित और सम ज्योतिषी एवरी नाउ एंड देन. एंड मैनी ज्योतिषी पीपल दे सेड कि हो सकता है ये बिल्कुल विरक्त हो जाए या बिल्कुल ही लिप्त हो जाए, शी हैज़ गॉट टू मच हाई एनर्जीज एंड आपको बहुत संभाल के इनको आगे ले जाना होगा. इस तरीके की चीज़ें दे यूज टू हेयर ऑल sorts of things. But as I grew up in Rishikesh, then we moved to Allahabad. Most of my education I did from Allahabad only. My BTech, then I did my MTech, then I did PhD. And PhD I did from Triple IT Allahabad and MTech also from Triple IT Allahabad. Then went to JNU for some time. And after that we went to Assam, and there I started working in the field of science, the scientist job that I wanted in NIT Assam. So, starting from that spiritual background, and then whenever people in their adolescent age, they are impressed by some actor, actresses, or some public figure, they would put their posters in their room. I used to put Swami Vivekananda at that time. I was very impressed by his personality. In fact, I used to dress like him in my home. We used to have some sheets, silken sheets that we take in summers, and that is slightly yellow in color. So I would wrap it around like Swamiji does. So I was so impressed by his personality. I would keep practicing Tratak meditation right from there. Like, people have seen me meditating when I was 4 5 year old also. But as you grow, you go to the college, your the fancy things, they completely change your mentality and all. So there I kept on enjoying also. I enjoyed life. I did everything that a college student should do. I completely enjoyed and involved myself into the life. But whenever some trauma, some problem happens, I will go back to meditation. I always knew that this is the only thing that is going to take me out. अब तक आप जान ही गए हैं कि डॉक्टर सोनाली एक ऐसे परिवार से जुड़ी हुई हैं जहां स्पिरिचुअलिटी बहुत प्रोमिनेंट है. She has been fortunate to grow up in an environment surrounded by nature, nadiya, pahad, fostering a subconscious awareness of meditation. She would fall back to meditation when she was under stress. She knew कि ध्यान ही उनका सहारा है when things were not going right. Despite facing traumatic experiences, including depression, during her formative years, meditation has helped her regain normalcy. Let's continue in her journey and now explore the phase where she experiences a true conscious spiritual awakening. And, when I was in PhD, then only I got married. I think second year of my PhD I got married. एंड मैंने जितना रिकॉर्ड टाइम में पीएचडी कंप्लीट की जा सकती है उतने में कंप्लीट किया था. बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे. मुझे हमेशा लाइक गॉड का भी ग्रेस रहा मेरे साथ कि करियर वाइज मेरे को कभी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं मिला है उसमें. ऑल्सो आई वुड से कि ये आपकी हिम्मत भी होती है, क्योंकि जब आपकी शादी होती है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में आओ या रिलेशनशिप से बाहर निकलो, एवरी टाइम द जर्नी इज डिफिकल्ट. But my childhood already had made me a fighter since then. So I would say meditation was again a tool that would just reset me whenever I need, and then I will continue working. So life kind of changed when I conceived my daughter. And मुझे याद है my entire pregnancy I was writing my thesis, क्योंकि मेरा पीएचडी कंप्लीट हुआ था एंड आई कंसीव्ड. तो मैंने कहा चलो इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे और अपनी थीसिस कंप्लीट करते हैं. शी वॉज ओनली 2.5 मंथ ओल्ड जब मैंने अपना प्रेजेंटेशन दिया था फाइनल, और मुझे अच्छी प्रेजेंटेशन हो गई एंड देन आई वॉज गिवन द पीएचडी. Then we moved to Gurgaon, and then to Assam, where I got my job. But then Assam is a beautiful place to be. And many years, after many years, again I got very close to nature.
एंड नाउ आई रियलाइज कि ये मेरे अंदर का वो स्पिरिचुअल एसेंस ट्रिगर हो जाता है जब भी मैं नेचर के बहुत करीब होती हूँ। तो जब तक मैं ऋषिकेश में थी वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हाइटेंड थी, उनके इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा विजिबल थे। देन आई काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड एंड मैनेज्ड इट थ्रू आउट माई लाइफ. So I've been twice into depression, but I would like to mention this one part. So second time, like after giving birth to my daughter, it was the first time I was not earning for some little time, and my life kind of transformed because independence was a scarcity mindset requirement for me. If I am not, I'm feeling that I am dependent on somebody for whatever reason is. Of course आपने बच्चा भी दिया है तो आप उस समय इमिडिएटली काम नहीं कर सकते हो, बट वो मुझे समझ नहीं आ रहा था। मेरे लिए था कि नहीं, इंडिपेंडेंस गई तो कुछ गलत हो जाएगा, सम प्रॉब्लम इज अबाउट टू हैपन, एंड वो चीज़ें एलिवेट ही होती जा रही थी व्हेन वन ऑफ माय फ्रेंड, शी वाज माय फ्रेंड फ्रॉम कॉलेज बीटेक, she saw one of my very दुखी वाला status and she called me up and said कि क्या चल रहा है लाइफ में. मैंने कहा नहीं बस ठीक है, कट रहा है, हाउ आर यू. तो she said कि why don't you start meditating again. And there I recalled कि हाँ, meditation I should do. मैं भूल गई थी कि मेरा सहारा तो वहीं पर है. और तब मैंने फिर से, मैं रात में 11 बजे खाली होती थी एंड देन उसके बाद में मैं 1-2 घंटे बैठ करके आई यूज टू मेडिटेट. And it was not easy at that time. It was difficult. मतलब your body is tired, you sit for meditation, you might go to sleep, or you still might keep thinking about the negative thoughts. फिर धीरे धीरे इससे निकलते हुए जैसे ही मुझे असम जाने का मौका मिला, माय हस्बैंड्स पोस्टिंग वाज देयर एंड इट वाज जस्ट पोस्ट लॉकडाउन. सो आई थॉट कि ओके आई विल गो विद हिम एंड जस्ट सी हाउ द प्लेस इज, बिकॉज इंडिपेंडेंस का वो इतना मेरे ऊपर भूत सवार था कि व्हेन आई वाज नॉट वर्किंग आई did so many courses. I did life and wellness coaching for myself. I learned clinical hypnotherapy. I did all certifications. I learned Reiki, all levels. So in this time when I was not working, I started developing all these skill sets which I wanted to develop for myself, for my interest. But I always kept it like ये तो side business है, main तो मेरा science ही है. जब असम में हम पहुंच गए, मुझे आज भी याद है, इतना खूबसूरत हमारा घर था, सामने बड़ा सा पेड़ था एंड द नेचर इट्स लाइक वाइब्रेंट इन असम. वहां पर जाकर मेरे अंदर का ये स्पिरिचुअल एसेंस फिर से ट्रिगर हो गया. एंड ट्रिगर इस तरीके से होता है ना कि मुझे फिर बार बार मेडिटेशन करने का मन करता है. जैसे लोगों को कुछ मोबाइल देखने का मन करता है, मूवी देखने का मन करता है, मुझे उस तरीके से मेडिटेशन में बैठने का मन करता है. तो मैंने वो चीज़ें करनी शुरू करी. मेरे को असम में जॉब मिल गई एंड इट वाज डिफिकल्ट टू एक्चुअली हैंडल क्योंकि यू डोंट गेट वेरी इजी लेबर देयर. यहाँ पर मेट्रो सिटीज़ में इट्स इजी, इट्स नॉट वेरी इजी देयर. देन आई वाज मैनेजिंग माय डॉटर, और वो गवर्नमेंट वाला डे केयर में डालो तो you have to provide everything. It was difficult to manage, but it was happening somehow. And then again a trigger happened. And ये जो ट्रिगर है, जिसमें चाहे वो लड़ाइयों की वजह से हो, चाहे जिस भी वजह से हो, मुझे आज भी याद है कि वो एक दिन था जिसमें बहुत ज्यादा वो केओस बढ़ा घर में, टू द लेवल लाइक मुझे याद है कोविड का मैंने सेकेंड डोज लगवाया था तो मुझे हल्का फीवर था. एंड ये सारी सिचुएशंस, फिजिकली मेंटली आई एम नॉट स्टेबल, एंड देन अगेन दिस ट्रिगर हैपेंड और वो झगड़ा बहुत बढ़ा, बहुत ज्यादा. एंड इसके पहले जब जब मुझे, मैं अपने आप को इस सिचुएशन में पाया ना, तो मुझे हर बार लगता था कि बस इससे निकल जाना है. और फिर कोई ना कोई डर होता था जो मुझे रोक लेता था कि नहीं, बच्चा है. कभी लगता था नहीं, इसके सिवा कोई स्टेबिलिटी समझ नहीं आ रही है. ऑलवेज देयर वाज सम फियर अटैच्ड. और आई विल आस्क गॉड कि मुझे प्लीज थोड़ी सी सुख दे दो, थोड़ा सा खुशियां दे दो. बट दिस वन टाइम व्हाट हैपेंड वाज कि आई डिडंट आस्क फॉर एनीथिंग. एंड जब मैं एकदम सेटल हो गई, मुझे याद है कि मेरे को इतना ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक हुआ कि उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी. एंड मुझे 1-2 घंटे बाद जब होश आया तो आई कुडंट स्टैंड ऑन माई फीट. तो आई क्रॉल्ड टू द किचन टू ग्रैब सम वाटर. आई वॉज अलोन इन होम एट दैट टाइम.
That was the most severe and chronic anxiety attack that I had. And in that condition, जब मैं उठी तो I was so numb. मतलब I was not feeling bad, good, anything. I was not feeling anything. Then I went to my temple and sat in front of Devi, and I was sitting and I'm asking her कि I want this up down thing to end. I'm not even asking for happiness. I'm asking for nothing. And I have like always asked कि ये कर दे जे भगवान तो ये करेंगे, हमेशा वो सौदेबाजी करते हैं ना हम लोग, और प्रसाद में कुछ चढ़ाते हैं. एंड दिस वॉज द वन फर्स्ट टाइम जब मैंने प्रसाद में खुद को ही सरेंडर कर दिया कि मैं खुद को चढ़ा रही हूँ, जस्ट टेक मी एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विद मी, आई एम डन. एंड देन आई वेंट टू स्लीप. बट दैट नाइट आई कैन नॉट forget ever, because that entire night I could hear the sound of my breath. I could know that, figure out that I am sleeping. और मैं पूरे टाइम कंफ्यूज हूँ. अगर कोई सो रहा है तो उसको पता है तो वो सो नहीं रहा है, इसका मतलब. बट आई एम स्टिल स्लीपिंग. मुझे पता चल रहा है कि मेरी बॉडी रेस्ट में हो रही है. मुझे सपना आ रहा है अगर नींद में, तो वो भी मैं बैठ के देख रही हूँ कि अच्छा आप सपना देख रहे हैं. एंड दिस थिंग काइंड ऑफ, ये देखते देखते 3 साढ़े 3 बजे मैं थक गई. मैंने कहा क्या ही चल रहा है ये. एंड देन आई वाज, माय बॉडी वाज कंप्लीटली रेस्टेड, जैसे आराम पूरा मिल गया, पूरी नींद पूरी हो गई है. उसके बाद मैं उठ करके बाहर, जहाँ पर मेडिटेशन करती हूँ हमेशा, वहां जाके बैठ गई. तो वहां बहुत अंधेरा था, 3:30 बजे. वहां पे जेड ब्लैक अंधेरा होता है क्योंकि लाइट्स वगैरह स्ट्रीट ज्यादा नहीं होती. तो जेड ब्लैक अंधेरा था. मैं बैठ गई और आई वॉज नॉट मेडिटेटिंग, क्योंकि वो पहली बार मुझे मेडिटेशन से मेडिटेशन भी नहीं चाहिए था. मुझे नहीं चाहिए था कि ये भी अच्छा लग जाए, वरना हम ध्यान में बैठते हैं, हमारी एक इच्छा होती है कि ध्यान अच्छा होगा, पर मुझे वो भी नहीं चाहिए था. आई वॉज जस्ट सिटिंग देयर. एंड सम टाइम, मेरे हिसाब से 15-20 मिनट के बाद में मुझे लगा लाइट पड़ रही है फेस पे. तो जब ऐसा लगा तो मैंने सोचा कि मैं आँख खोल के देखूं कितना टाइम हो गया होगा. पर मैं आँख नहीं खोल पा रही थी. एंड माई बॉडी वॉज कम्प्लीटली जैम्ड. एंड जितना मैंने मूव करने की कोशिश करी अपनी बॉडी को, उतना ही ज़्यादा मुझे जैसे वो झुंझुनी चढ़ जाती है, वैसा फील हो रहा है पूरी बॉडी में. वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस. उसके बाद में मैंने जब धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली, फिंगर्स को मूव किया, आंखें खोल के मेरे को ये नहीं दिख रहा है कि सूरज आ गया है, पता नहीं कितना टाइम होगा. मैं ये देख रही हूँ कि अच्छा पत्तों के ऊपर ओस है, उस पे वो लाइट जा रही है तो कैसी दिख रही है. एंड देन आई एम क्वेश्चनिंग कि व्हाई वुड समवन लुक एट ऑल दीज थिंग्स. मैं अंदर गई, आई एम लुकिंग एट माई हस्बैंड एंड आई एम वॉचिंग कि इनकी आईब्रोज कितनी यूनिक है. देन आई एम लुकिंग एट माई डॉटर एंड इट सीम्स लाइक आई एम वॉचिंग अ चाइल्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. मतलब अजीब ही जोन में चल रही थी मेरी लाइफ. मैंने घड़ी देखी, इट वॉज 7:15. एंड ट्रस्ट मी, इन माई एक्सपीरियंस हार्डली 15 मिनट्स पास बाय. और मैं 3:30 से 7:30 तक वहां बैठी थी. मेरी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं था इस बात का कि मैं इतनी देर से बैठी हूँ, वरना पैर दर्द हो जाता है लोगों का. और मुझे पूरा भूल गया, मेरा मेमोरी खत्म हो गया कि लास्ट नाइट क्या हुआ था जिसकी वजह से मैं परेशान थी. दैट मेमोरी वेंट ऑफ. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट 14 days में मेरा अंदर का सब कुछ चेंज हो गया. सो ऑफ कोर्स व्हेन यू आर क्रिबिंग अबाउट योर लाइफ, यू हैव सम अनआंसर्ड क्वेश्चंस कि व्हाई मी, व्हाई दिस हैपेंड, व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई द पर्सन इज सो एंड सो. एंड आई स्टार्टेड गेटिंग दोज आंसर्स देन. मतलब ऐसा प्रकृति ने बना दिया कि अगर मेरे ऑफिस से हस्बैंड आ ही नहीं रहे, अगर मैं ध्यान में बैठी हूँ तो कोई बेल नहीं बजाएगा. मेरी बेटी सो रही है, वो उठेगी नहीं, कोई बाधा नहीं आएगी. मैं बैठी हूँ ध्यान में, तो अब ध्यान को कोई नहीं रोकेगा. गर्मी अगर हो गई है, बरामदे में बैठे हैं, बारिश हो जाएगी या हवा चलेगी ताकि मुझे वो गर्मी भी ना लगे. उस तरह से मेरा ध्यान होने लगा. आई स्टार्टेड टू रिमेम्बर माई सिग्निफिकेंट पास्ट लाइफ. मुझे अपनी 3 पास्ट लाइफ सिग्निफिकेंटली याद आ गई. उसमें कौन कौन व्यक्ति कौन था, और आज भी है तो वो कौन है, किस रोल में है. मुझे क्लियरली पता चल गया, कोई शिकायत ही नहीं बची, सब सवालों के जवाब मिल गए वो 14 दिन के अंदर. मतलब मैंने वैसे कभी लाइफ में गीता और ये सब पढ़ा नहीं था. इन 14 दिनों के बाद में आई एम एक्चुअली टेलिंग पीपल कि ये टेक्स्ट दिया होगा
और वो था वहां पर। मैं खुद को ही चेक करती थी, मेरे दिमाग में कुछ आया, मैं गूगल करके या वो बुक खोल करके चेक करती थी और वो वहां पे लिखा हुआ मिल जाता था। मतलब वो प्रैक्टिकली पहले दिमाग में आ रहा है, उसके बाद में वो वहां पर मिल रहा है। किसी किसी दिन इतना डाउनलोडिंग हो जाएगा, मतलब जैसे आपका ये प्लेटफॉर्म है, आई आई रिमेम्बर मैं ऐसे उस पर खड़ी थी, आई वाज ड्रॉपिंग सम वाटर ऑन द ग्लास एंड सडनली मेरे सामने से सब सीन खत्म होकर के मुझे फ्लैशबैक में कुछ और दिखाई दे रहा है, जैसे पूरी बड़ी स्क्रीन लगी हो। एंड 2 मिनट्स पास्ड, मतलब किसी को शक नहीं हुआ और मुझे पूरी 2 जीवन का चित्र दिख गया। तो ऐसा नहीं है कि कभी 15 मिनट आपको लगे और 2 घंटे बीते थे, कभी आपके लिए 4 घंटे बीत गए और एक्चुअली में सिर्फ 2 मिनट हुए। उसमें अब इतना कुछ देख करके मैं आ गई, तो ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ होने लग गई। देन आई वेंट टू लैब में अगर मैं डायरेक्टर के सामने बैठी हूँ एंड आई एम लुकिंग इनटू हिज आईज कि ये वाला काम मुझे दे दीजिए, वो मेरे लिए इजी होगा, एंड ही विल से द सेम थिंग। I somehow started to attract the people who want some kind of suggestion, जिनकी लाइफ में कुछ चल रहा है, जैसे मेरे माथे पे बोर्ड लगा हो, वो आकर के मुझसे डिस्कस करने लगेंगे और मैं उनको कुछ बताने लगूंगी। फिर मेरे जो, जैसे आप डांस में है तो आपके कुछ डांसिंग इंटरेस्टेड वाले फ्रेंड्स होते हैं, वैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो कि मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्टेड थे। सो आई टोल्ड एवरीथिंग टू देम एंड दे वर लाइक यू टीच अस ऑल्सो। तो मैंने ऑनलाइन पहली बार क्लास लिया कि मैं सिखाती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए मेडिटेशन एक प्रोसेस बनने लगा। मुझे उसकी सारी डायनामिक समझ में आने लगी कि कैसे व्यक्ति ध्यान में जाता है, वो क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं जिससे हम ध्यान में जाएं, किस प्रवृत्ति का व्यक्ति कैसे ध्यान में इजीली चला जाएगा, वो सब समझ में आने लगा। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल ट्राई टू टीच यू। और मैंने उनका पहला ही सेशन लिया एंड दे आर शेकिंग एंड डूइंग ऑल द सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ऑन स्क्रीन, वन सिटिंग इन दिल्ली, वन सिटिंग इन बैंगलोर। दे आर सेइंग वी आर एबल टू फील अवर चक्रास right from the first class. Then I thought कि okay, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि let's teach meditation. कॉलेज में जहाँ पर मैं काम कर रही थी वहां पर भी लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। फिर मुझे इस चीज में इतना इंटरेस्ट आने लगा, मैंने कहा आई हैव टू परस्यू अ जॉब जिसमें मुझे 4-5 घंटे तो ध्यान करने को मिले। ठीक है, वो लैब वर्क के साथ तो हो नहीं सकता। तो फिर मैंने जो है फाइनली हर्षित को, अपने हस्बैंड को बोला कि आई वांट टू रिजाइन एंड डू दिस फुल टाइम। एंड वो जॉब मेरी गवर्नमेंट जॉब हो जाने वाली थी कुछ समय में। ही सेड कि आर यू श्योर, इज इट इज साउंड्स लाइक एन इम्पल्सिव डिसीजन। I said I am very sure. Then I went to the director and told him the same thing. He said ki you might be under the impression of some stress. Take a sabbatical for 3-4 months and then come back to me. I said okay, I'll take sabbatical. मैंने भी इतना इम्पल्सिव नहीं किया, मेरे को भी थोड़ा सा डाउट तो आ ही रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन वो जो सैबैटिकल लिया उसमें मैंने इतना घूमा, पूरा नॉर्थ ईस्ट आई कवर्ड। एंड आफ्टर 3 months जब मैं लेटर लेके जा रही थी, आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज सो हैप्पी। देन द डायरेक्टर ऑफ NIT looked at me and he said कि so you are still going to leave. My face was telling that I am even more sure now. So he said okay, I am very sure you'll do something very good in your life. And then we shifted to Gurgaon back again because of my husband's job. And I started teaching meditation. I started teaching with one girl. My first student here was Manisha Nirankari. And I taught her 5 to 6 a.m. पहला बैच मेरा। नेक्स्ट मंथ से ही मैंने 3 बैचेस बनाए और बहुत सारे लोग आने लग गए। द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पीपल हैव सीन, मतलब मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैं उन लोगों को माफ कर पाई हूँ। मतलब आई टू द लेवल कि आई फील एम्पैथी फॉर देम। मेरे बाहर सब कुछ सेम था और अंदर से सारा का सारा मटेरियल ही चेंज हो गया ध्यान के माध्यम से। तब मुझे लगा ये कोई बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि हम ह्यूमंस कर सकते हैं, और हम क्या ही कर रहे हैं फिर। तो तब से मैंने जो ये सिखाना शुरू किया, आई हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फोबियाज। डेथ का ट्रॉमा हो, नहीं निकल पाते हैं लोग, कितने ज्यादा अजीब अजीब लोगों को फियर्स एंड OCDs हैं आज की लाइफ में। तो मैंने कहा कि ये जो मैंने लाइफ एंड वेलनेस कोचिंग का ट्रेनिंग लिया था, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का, फ्रॉम देयर आई गॉट सम फॉर्मेट, बट द कोर इज मेडिटेशन। एंड
वो जो वहाँ पर आसाम में वो मेरा कुंडलिनी जागरण का एक्सपीरियंस हुआ, जिसके बाद से वो ध्यान की गहराई मैंने अचीव करी। मैंने 3-4 दफ़े उसी समय ही समाधि भी एक्सपीरियंस करी। एंड जो मेरा पहला निर्विकल्प समाधि का एक्सपीरियंस था, दैट वाज मैग्निफिसेंट। उसके बाद से मुझे एकदम कोई डाउट किसी चीज़ में नहीं रह गया। एंड इट्स लाइक व्हेन यू एक्चुअली फील यू हैव अराइव्ड, then whatever you choose and whatever you do, it does not makes any difference. Yeah, you're just happy and blissful. Something may happen good, doesn't happen good. So that's how life became. And since then I'm just preaching and doing, following the same thing. And तब से अभी 3 साल हो गए हैं ध्यान सिखाते हुए। आई थिंक मोर देन 10,000 पीपल ऑनलाइन ऑफलाइन पर्सनल ट्रेनिंग के लिए या फिर ग्रुप में, आई हैव taught them meditation and tried to help them. These many lives I have touched, and I just feel so proud today. What the people are my team, they are all my students. एक भी स्टूडेंट डिसोसिएट नहीं हुआ आज तक। कुछ फ्रेंड्स बन गए, कुछ एक कम्युनिटी का हिस्सा बन गए, कुछ जो रिट्रीट में जाते हैं। तो एक देयर इज अ प्योर लव इनसाइड यू व्हेन यू आर स्पिरिचुअल। जो आध्यात्मिक पाथ पे आ जाता है ना, सबसे पहली चीज जो वो महसूस करता है वो होता है वननेस। वननेस विद एवरीथिंग। तो जहाँ वननेस आ गई वहाँ कंपटीशन खत्म हो गया कि आपके आगे बढ़ना है या उनसे बेहतर बनना है, क्योंकि वननेस है। आपको ये दिख रहा है कि जब सबकी प्रोग्रेस है तभी आपकी भी प्रोग्रेस है। जब सब बढ़ रहा है तो ही आप भी बढ़ रहे हो। इसमें कोई डिफरेंस नहीं बचा अब। अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति जिसका स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो गया जीवन काल में, कुंडलिनी जागरण हो गया, जो कि स्पिरिचुअल पाथ पर अब पूरी तरीके से अग्रसर है, उन्होंने अपने आप को इसके लिए सरेंडर कर दिया है। वो क्या करते हैं, वो करते हैं जो उस समय की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि हम अगर वाई गुरु जी की बात करें, उन्होंने मार्शल आर्ट सिखाया अपने टाइम पे। उन्होंने ये बनाया कि एक रूल की घर का एक बच्चा जो है वो सरदार कहलाएगा, वो प्रोटेक्ट करेगा, फैमिली साथ में रहेंगी, क्योंकि उस वक्त यही रिक्वायर्ड था। उस समय बैठ करके वो सिर्फ सबको माला जपना नहीं सिखा सकते थे। उस समय मार्शल आर्ट सिखाई उन्होंने, उसमें भी उन्होंने मेडिटेशन और योग को यूज किया ताकि वो इतना एफिशिएंट काम कर सके। मतलब सरदार लड़ रहे हैं जिन फौजियों के साथ में जिनके पास बंदूकें हैं, एंड स्टिल दे आर एबल टू फाइट बिकॉज दैट आर्ट इज सो प्रोफाउंड। जिस लेवल का दर्द बेयर कर ले रहे हैं वो फैमिलीज के लिए, होता है ना, वो गरम तेल में डाल दिया और ये सब, इट्स नॉट इजी। ह्यूमंस आर बॉर्न विथ फियर। इट्स द बेसिस ऑफ लाइफ, द फियर। लेकिन उसके आप बियॉन्ड जा चुके हो, मतलब वो स्पिरिचुअल पाथ में आप कितने आगे हो। ठीक है, तो उस समय की वो रिक्वायरमेंट थी। स्वामी विवेकानंद जी को देखें तो उस समय उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि रिलीजन का नॉलेज है ही नहीं हमारे, कि हमारा रिलीजन कितना महान है, ब्रिटिशर्स को पता ही नहीं है, तो ये बताने की जरूरत है। तो उन्होंने उसका जो है प्रचार करना शुरू किया। इसमें बुक्स रिलीज करी, वेदांतिक सोसाइटी का गठन किया, क्योंकि उस समय की वो रिक्वायरमेंट थी। अब के समय में यदि कोई आ रहा है तो वो मेजोरिटी स्ट्रेस और एंजाइटी पे काम कर रहा है, क्योंकि इस समय का जो है पैंडेमिक ये बना हुआ है। आज की डेट में हार्मोनल प्रॉब्लम 10 से 1 महिला को हो रही है, उससे भी कॉमन 6 से 1 व्यक्ति को स्ट्रेस और एंजाइटी है। हर महीने से साल में साइकोसोमेटिक नए नए प्रकार की डिजीज निकल रही है। लोगों का इम्यूनिटी लेवल बहुत नीचे हो चुका है, टॉलरेंस लेवल खत्म हो गया है, एडिक्शन 5 साल से के बच्चों से शुरू हो जा रही है। तो ये समाज की बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस समय की रिक्वायरमेंट ही यही है कि हर व्यक्ति जो कि हीलर है, जिसको लगता है कि उसके पास हीलर होने का मतलब क्या है कि आपका सर्किट कंप्लीट हो गया, आप अपना कुछ नहीं दे रहे, पर जिसे देना है उसके देने लायक आपकी जो वायर है वो आप कंडक्टर बन गए बस बेसिकली। अब आप अपना एक उंगली सॉकेट में डालो और दूसरा व्यक्ति के अंदर डालो और ये करंट फ्लो कर दो। दैट इज ऑल योर रोल इज। इससे ज्यादा हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए, वरना हम अपना कर्म बनाने लगे जाएंगे।
हमें लगेगा हम कर रहे हैं, और जहां आपको लगा कि आप कर रहे हो यानी कि ये आपका कर्म है, और आपका कर्म है तो फिर अब अगले कई जन्मों तक फिर इसे भी निपटाना पड़ेगा। जबकि एक स्पिरिचुअल सीकर चाह रहा है कि वो कर्मों से मुक्त हो, वो अब और कर्मों में फंसे नहीं, अब जो चैप्टर है यहीं पर क्लोज होने चाहिए। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हर पल आपको एक तो ये याद रहे कि अपना पाथ डिस्टर्ब नहीं होना है, बस कंडक्टर हैं आप और बने रहिए, वो भी कृपा हो गई है कि आप बन गए हैं। और ये एनर्जी सब तक पहुंचाइए, सबके पास एक एड्रेस होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए टू कम बैक टू। आजकल छोटे छोटे बच्चों में हम लोग फेथ नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स को देखकर थोड़ा बहुत हमारे अंदर फिर भी आ गया था कि हाँ भाई, पेरेंट्स से भी काम न बने तो भगवान भी होते हैं। आज की डेट में बच्चों से आप पूछ लीजिए कि भगवान क्या होते हैं, वो आपको कुछ फेरी सी स्टोरी बता देंगे। They have no concept. And this is such an irony that the Sanatan Dharma, which is the most explained and beautiful Dharma, people don't have the awareness about it. The Hindus have no awareness about Sanatan. And it is so easy to bluff you at this stage. कोई आपकी अंदर फेथ आया तो आपको कुछ भी कोई बोलेगा वो कर जाओगे, और या तो आप बिना टेक्स्ट में गए, बिना समझे, जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम बहुत साइंटिफिक हैं, वो ये समझे बगैर कि सबसे साइंटिफिक धर्म है सनातन, वो इसको बिना पढ़े बिना समझे डिनाई कर देंगे तो बहुत सारा कुछ है। जबकि ये प्राइमरी के लिए नहीं है। आप समझिए, हमारे धर्म में जो है ऑप्शन दिया गया है। जैसे प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आप उनको पूछता कोई ABCD पढ़ना है तुमको कि 1 2 3 4 पढ़ना ही है, करिकुलम है। बड़े होते हो आप क्लास में तो होता है कि साइंस लोगे कि मैथ्स लोगे, तब जाके आप चूज करते हो। तो सोचिए, हमारा धर्म में एक ही चीज, कई लोगों की ये कंप्लेन होती है कि इतनी चीजें हैं कि हमें समझ नहीं आता क्या फॉलो करें, हम कुछ नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपको एक्चुअली में प्रिविलेज दिया गया है टू एक्चुअली फाइंड एंड चूज अकॉर्डिंग टू योर प्रवृत्ति। बहुत सारे धर्मों में ये चीजें नहीं है, बस यही है, यही करो, जस्ट फॉलो दैट। तो इट इज एडवांस्ड एंड दैट रिस्पेक्ट शुड कम। सो अकॉर्डिंग टू मी, इफ देयर इज समवन हु थिंक्स दे आर अ हीलर, हु हैव स्टार्टेड टू प्रैक्टिस इट, उनके अंदर वो क्वालिटीज आई हैं, ईश्वर की कृपा है उन पर, तो उन्हें इस समय की सबसे बड़ी समस्या जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, फोबिया, हमारे पास अभी 2 वक्त की रोटी के लाले नहीं है पर फिर भी हम खुश नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। इसको दूर करने के लिए प्रयास करें। जो आने वाली जनरेशन है, उन वो इतने सेंसिटिव बच्चे हो रहे हैं, इतने ज्यादा सेंसिटिव बच्चे हो रहे हैं, फेथ बिल्कुल खत्म है। तो इसके ऊपर काम करें, ये लक्ष्य होना चाहिए मेरे हिसाब से इस समय, अगर कोई है व्यक्ति हीलर। क्योंकि आप अगर स्पिरिचुअल उसमें चले गए हैं तो आपका खुद का कुछ है नहीं, तो आप समझ लीजिए कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें अपने आप को लगा दीजिए। जैसे गीता में 2 चीजें बताई गई हैं, पहले आप सत्य को जानेंगे कैसे, दूसरा भाग बताता है सत्य जानने के बाद आप जीवन जिएंगे कैसे। क्योंकि सत्य जान लिया उसके बाद वो अंत है, अब क्या क्या करें हम इसके आगे। तो कुछ चले जाते हैं हिमालयस पर, कुछ चूज करते हैं यहाँ रुकेंगे, पर जो यहाँ भी रुके उनको भी वही जीवन जीना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर अगर ब्रह्मचर्य नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो आप हिमालय पे जाके भी कुछ नहीं कर सकते। Instead of retreating to the Himalayas, Sonali has decided to stay here in this material world to help individuals achieve their life goal of happiness, health, and inner peace. It's the perfect time to talk about her wellness center. Let's hear about Kunjika. It's a very unique name. How did the name come about, and what all is she doing there? कुंजिका नाम जो है मैंने दुर्गा सप्तशती से लिया है। तो दुर्गा सप्तशती में कुंजिका स्त्रोत जो है, दैट इज द की टू द एंटायर दुर्गा सप्तशती। तो वहां से ये नाम आया, और ये भी पूरी एक स्टोरी है कि कैसे हम लोग बहुत सारे नामों के बीच में ये कुंजिका नाम जैसे ही आया था, उसके बाद एवरीथिंग जस्ट स्टॉप देयर कि यही रहेगा नाम। तो मेरे सेंटर का नाम भी कुंजिका वेलनेस सेंटर है। इवन माय कंपनी नेम इज कुंजिका वेलनेस। और जो मेडिटेशन फॉर्म दैट आई हैव डिजाइंड और क्यूरेटेड दैट मेथड, दैट इज आल्सो कॉल्ड कुंजिका मेडिटेशन।
विच इज़ अ 21 आवर प्रोसेस. 21 आवर है, इसमें हम 5 days अ वीक मेडिटेट करते हैं, 1 hour एवरी डे. एंड हमारे 2 theory क्लासेस भी होते हैं जिसमें आई एक्सप्लेन दी प्रोसेस टू यू, ताकि आप इसको ब्लैक बॉक्स प्रोसेस ना हो जाए आपके लिए, आप अंडरस्टैंड करें व्हाट यू आर गोइंग टू डू. बिकॉज करंट जनरेशन ना, इनको अगर जस्टिफिकेशन दे दो, अगर बच्चे ने ये पूछ लिया है कि सिंदूर लगाना है क्यों लगाएं, अगर आप समझा पाए उनको साइंटिफिकली तो वो लगा लेंगे. पर अगर आप नहीं समझा पाए तो अब वो जनरेशन नहीं रह गई है जो कि बस कहने से मान लेगी. Same with the dhyan also. The meditators now they are very different. If you are proposing them Zen meditation every day, they have to just sit, stay idle, and not think about any thought. Very difficult. But instead, जो कुंजिका meditation process है उसमें every day we are doing something new. We are introducing 5 to 6 types of meditation into this course. जिसमें कि उनके लिए वो मोनोटोनस नहीं होता है. इट कीप्स ऑन चेंजिंग, देयर इज ऑलवेज सम फन एलिमेंट एडेड टू इट. द प्रोसेस इज सच डिजाइन so that they are also included. In some meditations they are chanting, so they are included. In some meditations they have to particularly focus on something, so they are included. So they have to do something, क्योंकि अभी जो रील स्क्रॉल करने वाली जनरेशन को आप ध्यान करने बैठाओगे तो उनके लिए इतना ईजी नहीं होता है ये प्रोसेस. बट इफ यू आर एबल टू ग्रैब देयर अटेंशन, then they will definitely fall into meditation. तो कुंजिका मेडिटेशन में it has been successful. मैंने जब से स्टार्ट किया था आई थॉट कि अगर एक भी व्यक्ति का काम नहीं बना या कोई खराब रिव्यू आया, आई जस्ट स्टॉप इट और मैं वापस से अपना जॉब परस्यू कर लूंगी. बट इट्स बिन नाउ 4 years and everyone has gotten benefit. एंड नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं कर सकते, 1 मिनट आप नहीं बैठ सकते, आपकी आंखें भी बंद नहीं करवा सकता कोई, तो भी आप ध्यान में जा सकते हैं अगर आप इसे करते हैं तो. क्योंकि ये प्रोसेस बनाया ही आप जैसे लोगों के लिए गया है. और 21 दिन में वो आपका जो पहला टारगेट होगा वो आपको फुलफिल करके दे देगा. उसके बाद अगर आप गंभीर हैं तो ध्यान आपको बहुत कुछ देगा, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. So for me, Kunjika is something not which I have chosen, which has chosen me to serve it. And जब तक मैं इसे सर्व कर पा रही हूँ मैं इसे करूँगी. As we wrap up this Gyanvardhak, enlightened conversation with Dr. Sonali, let's hear what is her final message, final takeaway that she has for us. क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया है ये कोई खास बात नहीं है. इफ़ यू आर अ ह्यूमन बीइंग, वी बोथ आर एज सिमिलर एज एनीथिंग एल्स. हम सब एकदम एक ही कंपोनेंट के बने हुए हैं. इफ़ यू जस्ट रिमूव द स्किन फ्रॉम आउटसाइड, even the muscles, the bones, they look similar, and everything at physical level that looks similar. अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पर जाएं या फिर अणु लेवल पर, एटम लेवल पर जाएं, तो भी सब कुछ सिमिलर है. वो डिफरेंस की एक पतली सी लेयर है बस बीच में, उसके सिवा कुछ है ही नहीं. एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट वननेस, देन यू डोंट इवन हैव टू स्पीक, योर इंटेंशंस जस्ट पास ऑन. और ऐसा हो जाता है, आप जब किसी के साथ बहुत गहरा रिलेशनशिप होता है तो कैसे आपकी एनर्जीज इजीली एक दूसरे पे पास ऑन होती है, एकदम आराम से आप अपनी बातें कम्युनिकेट कर पाते हैं. तो जहाँ हम लोग छोटी छोटी चीज़ें हमें लग रहा है कि हम स्मार्ट गैजेट्स के थ्रू और इन सब चीज़ों के थ्रू स्मार्ट हो रहे हैं, वी ऑलरेडी आर द स्मार्टेस्ट बीइंग. एंड ध्यान के माध्यम से आपको बहुत मेहनत करके जो मिलने वाला था फिजिकल वर्ल्ड में, वो आपको ऐसे इजीली मिल जाएगा. आपकी लाइफ बहुत ही सहज और सरल हो जाएगी. हमारा इनर कोर इज द मोस्ट आनंदमय प्लेस. And whatever you achieve in your life, you'll never be satisfied until and unless you taste this flavor, जो आपको एक स्पिरिचुअल एसेंस में मिलता है, एक स्पिरिचुअल सुख में मिलता है. ठीक है, क्योंकि बाकी कोई सा भी जो सुख होता है ना भौतिक जगत का, उसके साथ दुख जुड़ा होता है. आपको खाने का सुख चाहिए तो आपको भूख का दुख होना चाहिए. आपको किसी से मिलने का सुख तब मिलेगा जब बिछड़ने का दुख होगा बीच में. आपको नींद अच्छी तब आएगी जब जगे होंगे काफी समय से. नींद से उठते ही दोबारा सोने को कोई कहेगा, वो आनंद नहीं मिलेगा. तो योर एक्सपीरियंस चेंजेस इफ द कॉन्सिक्वेंसेस चेंज.
but only this spiritual anand, it is something that is not associated with any dukh. आज आपको बस आनंद मिल गया, अब वो रहेगा. Meditation is the only path that can actually lead you and can keep you away from stress, anxiety और जो आज के ये पैंडमिक सिचुएशन है. तो आप गोलियां खाने से पहले, दुनिया के सारे डिस्ट्रैक्शंस ट्राई करने से पहले, ये जो हमारी सबसे कोर साइंस है मेडिटेशन की, इसको ट्राई करिए. मेरे जीवन में मुझे सब कुछ ध्यान ने दिया है, तो मेरा तो पूरा जीवन ध्यान के लिए समर्पित है. लेकिन मेरा वही मैसेज है सबसे कि ध्यान, मेडिटेशन इज समथिंग जो कि ना सिर्फ आपको मेंटल बट कि फिजियोलॉजिकल लेवल तक भी ब्यूटीफुली चेंज कर सकता है. सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन, definitely give it a try. Thank you. Thank you, Sonali, for sharing your experiences and wisdom with us. Your insights have been invaluable. I'm sure my subscribers have a great number of takeaways from your journey. To everyone watching, firstly, thank you for reaching till this point in the video. And secondly, remember that finding balance and peace within ourselves is a continuous journey. And there are always resources and people like Sonali available to help us reach that goal. Until next time, stay well and keep seeking your inner light. See you soon with another story, another journey. Until then, look up at Sunny Side Up.